Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the other important companions of the Holy Prophet peace be upon him. The first of them is Abu Talib. Abu Talib जो है इनका ताल्लुक बनु हाशिम से था and he was the son of Abdul Muttalib, alright, and he was also the uncle of the Holy Prophet peace be upon him. Prophet peace be upon him के uncle थे, Prophet peace be upon him के दादा के बेटे and the Prophet peace be upon him चाचा, alright. He was the leader of Banu Hashim. जो Prophet peace be upon him का क्लान था उनके लीडर बन गए थे जब इनके फादर अब्दुल मुत्तलिब की जो है वो डिमाइज हो गई थी. He supported the Prophet peace be upon him and he took his custody at the age of 8. जब Prophet peace be upon him की मदर की डेथ हो गई, फादर की पहले डेथ हो गई हुई थी और जब ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई तो उसके बाद Prophet peace be upon him को संभाला अबू तालिब ने जब Prophet peace be upon him 8 साल के थे. इसके साथ साथ the Prophet peace be upon him was taken on a trade journey by अबू तालिब at the age of 12. और अगर आपको याद हो और नहीं याद है तो बर्थ टू प्रॉफिटहुड वाला लेक्चर जो है वो सुन लीजिएगा. उसके अंदर जो डिटेल्स मैंने बताई हैं उनको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा. उसमें हुआ ये दैट द प्रॉफिट peace be upon him and Abu Talib met the monk Bahira who saw the signs of prophethood in the Prophet peace be upon him, and he told Abu Talib that this child of yours is going to be something big in the future. Do not take him to Syria for the Jews are going to kill him. Abu Talib ने क्या किया that he sold off everything that he had and he went to Makkah. So it goes on to show the love of Abu Talib for the Prophet peace be upon him. इसके साथ साथ अबू तालिब जो है ही एक्सेप्टेड द प्रॉफिट peace be upon him मैरिज प्रपोजल ऑन हिज बिहाफ. प्रॉफिट peace be upon him का जो मैरिज प्रपोजल आया था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय अबू तालिब ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रॉफिट. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कस्टडी जो है वो इन्होंने दी प्रॉफिट peace be upon him को. जब हज़रत अली पैदा हुए तो प्रॉफिट peace be upon him को कहा अबू तालिब ने कि जी मैं तो ख्याल नहीं कर सकता हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव children, so you take care of him, and that is when the Prophet peace be upon him took care of Hazrat Ali रज़ी अल्लाह अन्हु. When Islam came, जब इस्लाम आया तो इन्होंने फ़ौरन से एक्सेप्ट उसको नहीं किया था. he did not accept it, even though some people claim that he did accept Islam. If you write that he did accept it, that's all right as per the Cambridge requirements. If you write that he did not, that is also correct as per Cambridge requirements. दोनों को मार्क्स जो है वो सेम मिलेंगे. दावत-उल अशीरा हुई जहाँ पे प्रॉफिट peace be upon him ने अपने क्लैन को बनाया, ठीक है. वहाँ पे अबू तालिब प्रॉमिस प्रोटेक्शन टू दी होली प्रॉफिट peace be upon him. उनसे कहा कि जी जो भी हो जाए मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आपने फ़िक्र नहीं करनी है. कुरैश ने क्या किया दैट थ्रेटन अबू तालिब, उन्होंने अबू तालिब को थ्रेटन किया एंड दे सेड दैट यू नीड टू स्टॉप योर नेफ्यू. जब अबू तालिब ने प्रॉफिट peace be upon him से बोला कि जी मुझे जो है वो थ्रेट किया गया है और मुझे कहा गया है कि अपने नेफ्यू को रोको, तो अबू तालिब को प्रॉफिट peace be upon him ने कहा that, oh uncle, if they put the sun on my right hand and the moon on my left, I will not give up the religion until and unless Allah wills me to do so or I get perished in the process. लाजमी एक कोट लिखना है. बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के अंदर भी अबू तालिब मौजूद थे. हालांकि some people claim that he was not a Muslim. He was there for 3 complete years. He was the one that provided land to the Muslims. इन्होंने मुसलमानों को लैंड प्रोवाइड की थी, ठीक है. और वो जो लैंड थी उसको हम कहते हैं शिब अबी तालिब. अबू तालिब क्या करते थे दैट ही वुड एक्सचेंज स्लीपिंग पोजीशन विद द प्रॉफिट peace be upon him. मतलब मैट्रेस दोनों के जो है वो डिफरेंट जगहों पे होते थे. अबू तालिब प्रॉफिट peace be upon him से कहते थे मेरे मैट्रेस पर रात को सोएंगे, मैं आपके मैट्रेस पर सोऊंगा. उसका फ़ायदा ये था दैट इफ एनीबडी वांटेड टू किल द प्रॉफिट peace be upon him, दे शुड किल अबू तालिब इंस्टेड. अबू तालिब, ड्यू टू द हार्शनेस ऑफ द बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम इन द 10th year of prophethood, ही बेसिकली पास्ट अवे. और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो नोट डाउन कर लो कि बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के एंड के ऊपर अबू तालिब वो इंसान हैं हु टोल्ड अबाउट द ड्रीम ऑफ द होली प्रॉफिट. अबू तालिब ने बताया कि मेरे नेफ्यू को एक ड्रीम आई है दैट द बैंड दैट यू प्लेस्ड इन द काबा हैज़ बीन ईटन अप बाय टर्माइट्स. जब वो बैंड निकाल के लाए तो इट हैड बीन ईटन अप बाय द टर्माइट्स, ठीक है. और हुआ ये कि उस वक्त बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम जो है वो ख़त्म हो गया था. दिस वाज इट विद अबू तालिब. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद हज़रत हमज़ा. हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है इनका ताल्लुक बनु हाशिम से है. ही वाज द अंकल ऑफ द प्रॉफिट peace be upon him. ही ऑल्सो हैड दिस ऑनर ऑफ बीइंग द फॉस्टर ब्रदर ऑफ द प्रॉफिट peace be upon him. और फॉस्टर ब्रदर कैसे थे बिकॉज दे वर मिल्क्ड बाय द सेम वुमन. एक ही औरत ने दोनों को दूध पिलाया एंड द नेम ऑफ दैट वुमन वाज हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है. इनको सोबिया भी कहा जाता है, सुवैबा भी कहा जाता है, बोथ आर करेक्ट. He was into wrestling and hunting. He was not interested in the activities of the Meccan activities. जो भी होती थी उसमें उन्हें कोई शौक नहीं था. एक दफ़ा क्या हुआ कि ये हंटिंग करके वापस आए. इनको नज़र आया कि अबू जहल जो है उसने प्रॉफिट peace be upon him को मारा है. दिस इज़ व्हेन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु लॉस्ट इट. हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सीधे गए अबू जहल के घर. ही हिट हिम विद द बैक ऑफ हिज स्वॉर्ड. अपनी तलवार के पीछे वाले हिस्से से उसको मारा
एंड ही सेड टू हिम नेवर एवर टच माई नेफ्यू अगैन, आज के बाद मेरे नेफ्यू को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इफ़ यू वांट टू फाइट समवन फाइट मी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम, इनकी वजह से द मुस्लिम्स ग्रू एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एज वेल। ज़ाहिर एक बहुत ही तगड़े किस्म के आदमी थे, सो बिकॉज ऑफ दैट द मुस्लिम्स ग्रू स्ट्रॉन्गर दैट नाउ वी कैन प्रे ओपनली। बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के अंदर भी ये थे, आपने बताना है, थोड़ी सी डिटेल्स दे देना कि 3 साल के लिए थे। ही ऑल्सो हैड टू ईट बॉइल्ड लीव्स एंड लेदर। ही माइग्रेटेड टूवर्ड्स मदीना, वहाँ पे प्रॉफिट ईसा अपॉन की काउंसिल के अंदर थे। जंग बदर में हुआ ये कि इन्होंने सिंगल कॉम्बैट लड़ी उतबा के साथ, हु वाज द फादर ऑफ हिंद, द फादर इन लॉ ऑफ अबू सुफियान, किल्ड हिम। दिस इज़ व्हेन द मक्कन्स वांटेड रिवेंज। ठीक है, कुरैश ने रिवेंज के लिए क्या किया, दैट हिंद हायर्ड अ स्लेव, क्योंकि हिंद के बाप उत्बा को मारा था तो हिंद ने हायर किया स्लेव को, हुज नेम वाज वाशी अल हर, एंड शी टोल्ड वाशी अल हर टू किल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, एंड रिटर्न फॉर इट उन्होंने कहा कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टियर्ड इन ओहद बाय वाशी अल हर। हिज बॉडी वाज बैडली म्यूटिलिएटेड, चीर फाड़ की गई इनकी बॉडी के साथ। प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम जब इनकी बॉडी के पास गए, ही क्राइड अ लॉट एंड द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ऑफर्ड हिज फ्यूनरल। नॉर्मली फ्यूनरल ऑफर नहीं करते थे उन लोगों का जो शहीद किए जाते थे, इनका फ्यूनरल ऑफर किया। एंड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द चीफ ऑफ मार्टियर्स बिकॉज ही वाज द मैन दैट बेसिकली इज़ द सरदार ऑफ ऑल द शुहदा दैट एग्जिस्ट। ठीक है, सो दिस वाज विद हज़रत हमज़ा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हज़रत ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु वाज किडनैप्ड एट 8 years of age। ही वाज सोल्ड इन स्लेवरी, इनको स्लेवरी में बेच दिया गया। ही वाज द नेफ्यू ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बॉट हिम। उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को एज अ गिफ्ट, क्योंकि उस वक्त स्लेव्स गिफ्ट दिए जाते थे, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस को गिफ्ट कर दिया टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने क्या किया, दैट ही फ्रीड हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत मोहम्मद ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को फ्री कर दिया। इनके पेरेंट्स इनको देखने के लिए आए, बट हुआ ये कि जैसे ही पेरेंट्स आए तो उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा आप हमारे साथ चलें। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने हज़रत ज़ैद से कहा कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू वांट। तो ज़ैद बिन हारिस ने कहा कि जी आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स बट आई विश टू बी विद द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम के साथ रहूँ। इनका नाम प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने चेंज करके ज़ैद बिन मोहम्मद कर दिया था, जबकि कुरान ने इसको फॉरबिड किया। एंड द कुरान सेज दैट इट इज़ बेटर फॉर यू और योर फॉस्टर चिल्ड्रन टू बी नेम्ड विद देयर बायोलॉजिकल फादर्स। आपके जो फॉस्टर चिल्ड्रन हैं दे शुड बी नेम्ड आफ्टर देयर बायोलॉजिकल फादर, सो यू कैन नॉट नेम हिम एज ज़ैद बिन मोहम्मद, ही शुड बी नेम्ड एज ज़ैद बिन हारिस। तो उनका नाम चेंज कर दिया गया था। इन्होंने प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम के साथ ताइफ का सफ़र किया, इन्हें भी पत्थर मारे गए। ही वॉज ऑल्सो पेल्टेड विद स्टोन्स बट ही डिड नॉट गिव अप रिलीजन, ही डिड नॉट लीव द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम अलोन। लेटर ही वेंट टुवर्ड्स मदीना। मदीना में व्हाट हैपेंड वाज कि जब ये गए तो इनको ये कहा गया कि अभी आप मदीना आ गए हैं, मक्का में अभी भी कुछ मुसलमान वापस वहाँ पे हैं, सो गो बैक टू मक्का, ब्रिंग बैक ऑल ऑफ देम। ठीक है, ब्रिंग ऑल ऑफ देम बैक टू मदीना, उन सबको लेके आओ मदीना। तो इनकी ड्यूटी ये लगाई गई कि ये मदीना से मक्का गए, सारे मुसलमानों को उठाया, वापस मदीना लेके आए। ठीक है, इनकी शादी हो गई थी उम्मे ऐमन से। इनका एक बेटे थे जिनका नाम था उसामा बिन ज़ैद, एंड द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम लव्ड उसामा लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, लाइक हिज ओन ग्रैंडसन्स। प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने इवेंचुअली हज़रत ज़ैद बिन हारिस से कहा कि आप ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी करें। अगर आपको डिटेल की स्टोरी चेक करनी है तो आप ये जाके 22 दी होली प्रॉफिट में देख सकते हैं। प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम की वो कज़न थी। हुआ ये कि डिवोर्स हो गई दोनों की। जब डिवोर्स हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम से कहा कि अब आप ज़ैनब बिन्त जाश से शादी करें। दिस वॉज टू मेक अ रूल दैट वन कैन मैरी द डाइवोर्स वाइफ्स ऑफ देयर फॉस्टर सन्स आफ्टर द इद्दत पीरियड ऑफ दैट वुमन इज़ ओवर। सगे बेटे की बीवी से शादी नहीं हो सकती, फॉस्टर बेटे की डाइवोर्स बीवी से शादी जब वो इद्दत पूरी कर ले की जा सकती है। दिस वॉज अ रूल दैट वॉज मेड। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु fought in the battle of Badr, in the battle of Khaybar, in the battle of Trench, in the battle of Uhud। टोटल 7 बैटल्स में कमांड किया। बैटल ऑफ मुता में इनको नंबर 1 लीडर बना के भेजा, बट व्हाट हैपेंड इन बैटल ऑफ मुता वाज दैट ही वाज द वन हु वाज लीडिंग, हु वाज फाइटिंग। इवेंचुअली he was martyred in that battle. The Prophet Isa upon him cried a lot on his death. So this is with Zayd bin Haris radiallahu anhu. More on this in the upcoming classes.